तो जिन लोगों ने मेरी क्लास पहले नहीं की है, अभी मैं आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ व्हाट एवर वी हैव डन जल्दी से, और उसके बाद फिर आज से क्या करना है वो करेंगे, और जो क्लास का जो पीछे छूटा है पोर्शन उसका हम लोग बैकअप बाद में कर लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we did is that there are two kinds of electricity. I'll just take 5 minutes and then give you a brief what we have done. So we know that electricity is of two types. One is static electricity and current electricity, right? तो static electricity कब होता है? Static electricity उसको कहते हैं जब charge stationary होता है. So when a charge is stationary, we call it static electricity. तो stationary charge किस पे होगा? अगर कोई insulator है, उसको अगर हमने rub किया, तो जहां पे भी चार्ज रब करने की वजह से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है दैट मे गेट रिमूव। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट को रब करने से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है रब करने की वजह से, राइट? तो ये जो रब करने की वजह से चार्ज आया है दोनों इंसुलेटर्स पे, ये इंसुलेटर्स हैं, चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। तो ये जो चार्ज आ गया है दोनों के ऊपर, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, मूव नहीं करेगा। सो ऐसे चार्जेस को हम लोग मतलब स्टेशनरी चार्जेस कहते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. There are two examples which we generally do for static electricity. Three examples. First is, whenever you rub a glass rod with a silk cloth, you get, positive charge on the glass rod and negative charge on the silk cloth. And ebonite rod, when rubbed with woolen cloth, ebonite will get negatively charged and wool will get positively charged. So, and lightning again is an example of static charges. Cloud के ऊपर जो static charges होते हैं उसके वजह से lightning होता है. And in fact, static charge का एक और example है कि when you rub a comb on a dry hair, है ना, जब हम लोग बालों के ऊपर comb को चलाते हैं तो comb पे एक charge आ जाता है again. So that charge is again because of this frictional electricity or static electricity. Now, another kind of electricity was current electricity, where charges move from one end to another, right? So when charge moves from one end to another, we say that this kind of electricity is called current electricity, right? So again, we did this activity where we rubbed a comb on our hair, and then when we brought it near the paper bits got attracted towards the comb, and this is how this paper bits got attached to the comb, and we say that this is because of again static electricity. This is something which we saw in the last class. Then there are two types of electric charges. One is positive charge and other is negative charge. So by convention, the charge acquired by a glass rod when rubbed with silk cloth is positive, and charge acquired by ebonite rod when rubbed with woolen cloth is negative. तो जब आप सिल्क से ग्लास रॉड को रब करते हो तो ग्लास becomes positively charged and silk becomes negatively charged. And when you rub ebonite is a material. When you rub an ebonite rod with a woolen cloth, the ebonite rod that will become negatively charged and the woolen cloth will become positively charged. Now we also saw the two properties of electric charges, that opposite charges attract each other and like charges repel each other. So these are the two properties of electric charges. And we saw this example also where you can see that when positively charged are brought near, they repel, and when positive and negative charges, that unlike charges are brought together, they attract each other. SI unit of charge is coulomb, and the definition of coulomb says that when 1 coulomb of charge is given to two objects which are placed at a distance 1 meter from it, so then the force is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton between these two charges. So the definition of 1 coulomb is if two equal charges, they are brought at a distance of 1 meter from each other,
experiences a force of 9 into 10 to the power 9 Newton, then we say that these two charged bodies have 1 coulomb of charge. So, and we also saw that a proton, the smallest charge possible is a charge carried by one electron, and that is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, negative charge of that. And a proton possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Please switch on your cameras, everyone. Every day I don't need to repeat this. Okay. Now, number of electron constituting 1 coulomb of charge, we saw this, this is called quantization of charge. So charge Q is equal to N into E. So total charge on an object is equal to number of electrons into charge carried on one electron. This is known as quantization of charge. So charge is quantized. This is another property of charge. So charge is quantized, means it always, the charge always occurs as integral multiple of charge carried on one electron. So total charge will always be equal to N into E. You cannot have a charge which is a fractional multiple of charge carried by one electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, है ना. तो बेसिकली क्या है कि इफ आई से Q is equal to Ne, that means number of electrons into charge carried by one electron is equal to charge, total charge which is there on an object. So we know that charge occurs only because of the movement of electrons. So when movement of electron happens, every electron will carry the charge which is there on that electron to another object. So when it goes from one object to other, it will carry the charge which is present on one electron. तो एक electron पे कितना charge है? It is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, negative of that. So इससे कम तो charge हो ही नहीं सकता है. मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb से कम charge is not possible, right? तो इसीलिए ये सारे integral multiple of charge on one electron will be the charge on any object. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है ना. हम लोग ये जो लिखते हैं कि मान लो 1 coulomb ऑफ चार्ज है, 1 coulomb ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे 1 coulomb ऑफ चार्ज के लिए. तो अगर इसको इसमें यूज करके देखोगे Q is equal to N into E, so 1 coulomb is equal to number of electron into 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the charge on one electron, E का value. So number of electron which constitutes 1 coulomb of charge is 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. This will be equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So how many electrons constitutes 1 coulomb of charge? This is these many electrons. 6.25 into 10 to the power 18 electron constitutes 1 coulomb of charge, right? इसको हम लोग जो हमारे पास यूनिटरी मेथड है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना. सो दिस कैन बी डन यूजिंग यूनिटरी मेथड एज वेल. सो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिंस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge constitutes 1 electron. So 1 coulomb of charge constitutes 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electron. This is again 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Clear है बच्चों? Yes. Yes, sir. फिर हम लोगों ने देखा था कि there are two kind of object, one is conductor and other is insulator. So conductors are those material which allow electrons to flow inside it, allow charges to flow inside it, right? So conductors have free electrons basically which moves from one end to the other and it carries charge along with it.
So there are certain, all the metals are called good conductors of electricity. Apart from that, the only non-metal which is a good conductor is graphite, and human body is also a good conductor of electricity. Now those substances through which electricity cannot flow are known as insulators. And example of insulators are all, bodies made of glass, ebonite, plastic, and rubber. These are all materials which are insulators. So conductors have free electron, and insulator does not have any free electron, and that's why charge is not flowing in an insulator, it is flowing only in a conductor. Then we saw electric potential and potential difference. So electric potential is basically work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point is called electric potential of that point, right? So, and potential difference क्या हो गया? Work done in bringing a unit positive charge from one point to the other point is known as potential difference between two points. ये मैं अभी तेजी से ही करा रहा हूँ, इसको आराम से मैं तुम्हें समझाते हुए, जो लोग नए हैं, आई डू इट सेपरेटली जस्ट टू मेक इट कंटिन्यूअस फॉर यू एंड bring that continuity. I am doing it. तो पोटेंशियल का जैसे कि डेफिनेशन मैंने बोला, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q. ये एक फॉर्मूला है जिसपे हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी पिछले क्लास में किया था, W इज इक्वल टू Q इंटू V करके. सो Q आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन इज चार्ज इंटू वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज. So W is work done, Q is charge, and V is potential. Right? Now it may be potential difference or potential at a point. Now from here I'll try and explain properly why, because this is the thing which will be covered today in the topic. We had done some part of it last class also. So what we saw that in a copper wire, charges do not flow on its own. So अगर हमारे पास एक वायर है या कोई कंडक्टर है, तो चार्ज अपने आप फ्लो नहीं करता है. ठीक उसी तरह जैसे अगर कोई पाइप है वाटर का, तो उसमें अपने आप वाटर नहीं फ्लो करेगा एक एंड से एंड दूसरे एंड. उसमें वाटर फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हाइट का डिफरेंस करना पड़ेगा, राइट? तो ये जब हाइट डिफरेंस होगा इस एंड से इस एंड तक, फिर ये वाटर फ्लो करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है. वाटर का प्रेशर, जहां पे हाइट ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ लेस प्रेशर है. सो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस वाटर फ्लोज, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय द हाइट इन द difference in the height of these two ends of the pipe. So similarly, current also does not flow in a conductor until and unless there is an electrical pressure difference which is being created between the two ends. So इन दोनों एंड के अक्रॉस अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में. और वो प्रेशर का डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? दैट इज यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी. We create a potential difference between these two ends. So whenever there is a potential difference between two ends of a conductor, there will be a current which will be flowing across it. So for a current to flow in a conductor, there has to be a potential difference between the two ends of the conductor, and that potential difference is being created by an external cell or a battery which is connected across the conductor. Is it clear to everyone? Yes, sir. तो जैसे तुम ये देखो, ये हम लोगों ने बहुत बारी कर लिया है वैसे तो, जो बच्चे पहले से हैं, बट जो अभी नए हैं उनके लिए जनरली क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ये जो डॉट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, राइट? सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन. नाउ व्हाट हैपेंस? सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल बी जीरो, बिकॉज देखो जो ये आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, वो तो स्टेशनरी रहता है, वो मूव नहीं करता है. व्हाट मूव्स इज दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, नेट फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड विल बी जीरो. जितने इलेक्ट्रॉन्स मान लो इस एंड से इस एंड तक आए, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जीरो हो गया. और नेट फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या हो गया? जीरो हो गया. So
When no potential difference is applied across a conductor, net flow of charge is zero. So there is no flow of charge which is happening. But when potential difference is applied across the conductor, then all these electrons will start moving in a particular direction. किस डायरेक्शन में वो अभी हम लोग देखेंगे. ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल सेल का है, इसके थ्रू इफ वी हैव कनेक्टेड अ कनेक्टिंग वायर, तो ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. Or because negative terminal of the cell is connected here, so this end becomes negatively charged, right? Now ये end negative है और ये end positive है, सारे free electrons पे क्या होते हैं, एक negative charge होता है, right? ये negative charge क्या होगा, ये positive के तरफ attract हो जाएगा. So negative gets attracted towards positive. So all these electrons, because it has negative charge, they will all start moving in positive direction. ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इधर मूव करने लगेगा, राइट. नेगेटिव से दूर जाएगा क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल, और पॉजिटिव चार्जेस के पास आएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी के पास आएगा, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. नाउ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दिस डायरेक्शन, वी से दैट, एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. नाउ that since negative charge is moving from right to left, there will be positive charges which will be flowing from left to right. वो कैसे, देखो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, बट बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज जब मूव करेगा, तो व्हाट विल हैपन, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस विल गेट एक्यूमुलेटेड एट दिस एंड, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस हैव मूव्ड. सी, कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हमारे पास एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज हैं. अब सारे नेगेटिव चार्ज अगर इकट्ठा हो जाएंगे इधर, ज्यादातर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी अगर बढ़ जाएगा, तो इधर क्या होगा, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा. क्यों पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो न्यूट्रल एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन सारे राइट से लेफ्ट को आ गए. तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डेपोजिशन हो गया बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक तरीका ये भी है बोलने का कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया है ना. दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, है ना, थ्योरी है ये. पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली मूव नहीं करता है, लेकिन बिकॉज नेगेटिव राइट से लेफ्ट के तरफ आ गया, तो वहां पे जो चार्जेस बच गए वो क्या चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट. सो ऑल दीज पॉजिटिव चार्जेस गेट accumulated towards the right. So we say that the positive charge has moved from left to right. So the movement of electron is from right to left, and movement of current is from left to right. Is it clear to everyone? Yes, sir, it is clear. और यही रीजन है कि हम लोग ये भी बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. यू विल लर्न लेटर दैट डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है बच्चों? Yes. So you can see electron was moving in random direction. The moment we apply a battery, it starts moving in a particular direction, है ना. अभी फिर से देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जब ऐसे रखो तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था, बट जैसे ही हमने एक ये बैटरी लगाया, तो बैटरी के लगाने से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव जो है इधर पॉजिटिव आ गया और ये इधर नेगेटिव आ गया. तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड हेंस जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इट कैरीज, it takes along the charge which is there on the electron towards left, and because negative charges moves towards left, the positive charge will move towards right, and the direction of the current will be in this direction. तो ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. हमेशा करंट जो सर्किट में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड करेगा. सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउटसाइड द बैटरी, is
or outside the cell is from positive terminal to the negative terminal. Is it clear, bachcho? Yes, sir. So similarly, you can see here as well, the switch is off, then the electron was moving in random direction. And the moment the switch was, so it was switched on, all these electrons started moving in a particular direction. तो यहाँ पे देखिए ये random direction में move कर रहा था और अब ये positive direction में move करने लगा. और जब electron move कर रहा है तो charge अपने साथ लेकर carry कर रहा है, and hence we say that charge is moving from in that particular direction. क्लियर है बच्चों? Yes. किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir. ये न्यूमेरिकल्स थे जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. मैं एक करके बता देता हूँ, बाकी तुम लोग देख सकते हो जिन बच्चों ने नहीं अटेंड किया है. बाकी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस किए थे. सो पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, so if you see this, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? So we have to calculate the value of work done, and the value of charge is equal to 2 coulombs, and potential difference 118 to 128 volt. So V will be equal to, difference कितना हो जाएगा, 128 minus 118, that is 10 volt का difference. So work done W is equal to Q into V. So this will be equal to 2 into 10, that is 20 joules. Clear बच्चों? Yes, sir. Simple application है, simple formula based application. चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं. So यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना था, आई सपोज, जो पिछली क्लास में मेरे साथ बच्चे थे. See, the potential difference in the circuit may be produced by a battery consisting of one or more electric cells. The chemical action within a cell generates the potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. So what happens basically, how does this potential difference is created a bit across the two ends of a battery or a cell? So there is some chemical reaction which happens inside the cell. And because of those chemical reaction, there is a potential difference which is being created across the two ends of that or two terminals of the cell. So actually what is happening, the chemical energy is getting converted into electrical energy. Okay. So when the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion in the conductor and produces an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to spend its chemical energy stored in it. So if you draw a simple electrical circuit, so let's say this is a resistance. What is resistance? हम लोग देखेंगे कि क्या होता है resistance. So और यहाँ पे let's say एक बैटरी है और सेल है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया. सो अगर हम लोगों को करंट को ड्राइव करना है इसमें, तो we'll have to connect a battery across this resistor, and hence the current will flow inside this resistor. Now this is being done because of the potential difference which is between these two ends of the battery, and these two ends of the battery के across जो भी potential difference होगा V, that will also occur between these two ends. Why? Because this is connected by a simple wire
which has no resistance. तो यहाँ तक जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेम होगा, बिकॉज ये एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है जिसमें कि जिसका कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है. सिमिलरली इस एंड का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है सेम होगा, अगेन बिकॉज ये वायर से कनेक्टेड है and there is no loss of energy which is happening because there is no resistance which is there in this connecting wire. So across this resistor you will find the same potential difference V as you are applying due to this battery V, due to this battery, and that is also again equal to V, right? So whatever potential difference is across the terminals of the battery, that same potential difference you will get across the two terminals of this resistor, right? और होता क्या है कि chemical energy which is stored inside the cell, that is being spent, and that electrical energy, that chemical energy is converted into electrical energy, and because of that electrical energy the potential difference is being created across this, being produced across these two ends of the resistor. So SI unit of potential difference is volt and is denoted by letter V. अच्छा, अब रेजिस्टेंस की बात आई थी, एक बारी थोड़ा सा तुम्हें अगर रेजिस्टेंस का आइडिया मैं दूं कि क्या होता है, कि लेट्स से हमारे पास एक कंडक्टर है और अभी हम लोगों ने बात किया कि ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द मोमेंट यू कनेक्ट अ बैटरी और सेल अक्रॉस दिस कंडक्टर, all these free electrons which are present in this start moving in a particular direction. So let's say these are the free electrons and this is positive, this is negative. तो ये वाला end positive, ये negative हो गया, तो because electron has negative charge, all these electron will start moving in a particular direction. अब जब ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तब यहाँ पे जो ये जो हमारा कंडक्टर है वहां पे उसके अंदर देयर मे बी दीज पॉजिटिव आयंस विच में बी लाइंग समवेयर. लेट्स से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे कई सारे पॉजिटिव आयंस भी रहे होंगे, राइट, जिसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा. अब ये क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है ये जाके इस पॉजिटिव आयन से टकराएगा. पॉजिटिव आयन से टकराएगा, इट विल लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो उसके बाद फिर से ये बिकॉज दिस potential difference is still there between the two ends, again it will start accelerating. तो पहले रेस्ट पे था फ्री इलेक्ट्रॉन या रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जैसे ही हम लोगों ने बैटरी लगाया वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ, रास्ते में उसको जो एटम्स मिले या आयंस मिले उससे वो टकराया, उसका स्पीड स्लो डाउन हुआ, फिर से वो एक्सेलरेट किया और आगे बढ़ा, आगे जाके दूसरे किसी एटम से दोबारा टकराएगा और फिर से उसका स्पीड कम होगा और फिर एक्सेलरेट करेगा. इस प्रोसेस में क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव आयंस नहीं होते तो ये इलेक्ट्रॉन सिंपली एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर जाता. बट बिकॉज ये बीच बीच में पॉजिटिव आयंस से कोलिजन हो रहा है इसका, और उस कोलिजन की वजह से उसका टाइम जो है एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए वो टाइम इंक्रीज कर जाता है. तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को. और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है क्या, करंट का प्रोडक्शन है, राइट. करंट जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी के वजह से तो करंट प्रोड्यूस होता है. तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट के वैल्यू को लेस कर देगा जितना ज्यादा कोलिजन होगा. जितना धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा उतना लेस करंट होगा. So more the time which electron takes to go from one end to the other, more will be the resistance. तो टाइम ज्यादा कब लगेगा, जब कोलिजन ज्यादा होगा. कोलिजन जब ज्यादा तब होगा, और कोलिजन जब ज्यादा होगा हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट. और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या है, कम है, राइट. सो यही दिस सेट्स अप दिस बेसिक फंडामेंटल ऑफ ओम्स लॉ जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, कि भाई जब इलेक्ट्रॉन जाएगा टकराएगा, उसका रेजिस्टेंस उस टकराने के वजह से उसका स्पीड स्लो हो जाएगा और ज्यादा टाइम में पहुंचेगा. इसके वजह से हम बोलते हैं कि ये जो कंडक्टर ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को. सो conductor always offers some resistance to the flow of electron because there will be atoms
or ions inside the conductor which will slow down the electrons. तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है एक कंडक्टर किसी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सो दैट मीन्स दैट दिस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट. तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which slows down the flow of electron or which reduces the current is known as resistance of that particular conductor. क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. भाई सब लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हो. आयुष, नव्या, दक्ष, नमन और अक्षत सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें प्लीज. सर मेरा तो चलता ही नहीं है. जैसा भी चलता वैसा चला लो, है ना. और नहीं, तुम्हारा नहीं चलता है तो उसको ठीक कराओ ना. जिंदगी भर ऐसे उसी कैमरे पे चला लोगे क्या? हाँ? तो दूसरा खरीद लो भाई. यू कैन ऑर्डर वन कैमरा. सर मैं भूल जाता हूँ हर बार. भूल जाता हूँ तो मैं फिर आज कर देता हूँ कुछ अच्छा सा मैसेज मम्मी को, तो याद रहेगा जीवन भर. नहीं नहीं सर, मैं कर दूंगा खुद. कर दोगे ना? तो अगली क्लास तक अगर नहीं वेट करोगे तो मैं एक अच्छा सा मैसेज भेज दूंगा, फिर तो अपने आप ऑन हो जाएगा. आयुष, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. बिना कैमरा के तो फिर सो रहे हो, बैठ रहे हो, क्या पता, है ना. कुर्सी टेबल पे आराम से बैठ के क्लास करो. एंड आई वांट ऑल दीज कैमरास टू बी स्विच्ड ऑन फॉर एवरीवन. Until unless there is some problem of network, write to me separately and take permission for that. Otherwise, I will not allow you in the class. चलो आगे बढ़ते हैं. So SI unit of potential difference is volt and is denoted by letter V. तो जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसका जो SI यूनिट क्या है? दैट इज वोल्ट, राइट. And it is denoted by a capital letter V. It is named after the Italian physicist whose name is Alessandro Volta. The potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other. तो इसका डेफिनेशन को अगर समझो तो ये बेसिकली क्या कह रहा है? अगर दो पॉइंट है, लेट्स से A और B, A से B तक अगर एक चार्ज को मूव करके लेकर आ रहे हैं, तो इस चार्ज का अगर वैल्यू 1 कूलम्ब है, लेट्स से द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 1 कूलम्ब, एंड वी स्पेंड 1 joule of work or we spend 1 joule of energy in moving this charge of 1 coulomb from one point to the other point, right? Then we say that the potential difference between these two ends is equal to 1 volt, right? So work done या voltage is equal to W by Q हम लोग जानते हैं. work done 1 joule है, Q जो है 1 coulomb है. So 1 जूल पर कुलम हो गया. जूल पर कुलम को हम लोग लिखते हैं 1 वोल्ट, है ना. सो वी ऑलरेडी सॉ दैट जूल पर कुलम इज गिवन ए स्पेशल नेम इक्वल टू 1 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर. अब देखो ये समझो, ये हम लोग अभी कर भी रहे थे पीछे. Try and understand. We have a conductor, we have a resistor here, and then we have a potential source, that is a cell or a battery. Let's say we have to calculate the potential difference between these two ends. So you always need to connect a voltmeter in parallel. ठीक है. तो ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस अगर हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग एक वोल्टमीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके रख लेते हैं. तो ये जो पैरेलल में हम लोग वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस 2 पॉइंट्स A and B. सो देयर इज अ रीजन व्हाई वी कनेक्ट इट इन पैरेलल. तो होता क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमारे पास ये वोल्टमीटर नहीं था, तो हमारे पास जो आइडियल सर्किट था वो क्या था कि यहाँ पे एक रेजिस्टर था और ये एक पोटेंशियल सोर्स V है, राइट. और ये दो एंड है हमारे पास, दिस इज A एंड दिस इज B, राइट. नाउ इफ लेट्स से वी हैव
Now because we are connecting this potential source here, there will be a current which will be flowing inside. तो वो करंट आई फ्लो कर रहा है लेट्स से इसके अंदर, बट जैसे ही वोल्ट मीटर हम लोगों ने लगाया, अब जो करंट आई फ्लो कर रहा था, अब कुछ पार्ट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द करंट विल फ्लो इन दिस पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ करंट विल गो स्ट्रेट. भाई अब करंट जब इस जंक्शन पे आया तो उसको दो रास्ते मिल गए, एक ऊपर से इधर से जाने के लिए और दूसरा अलोंग द रेजिस्टर. अब ऊपर से जाने का जो रास्ता है, अगर उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ये करंट का वैल्यू उतना कम होगा, राइट. सो वी सॉ दैट current is inversely proportional to resistance. So more the resistance, less is the current. तो अगर यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है, इसका रेजिस्टेंस अगर हम ये कह दें कि इसका रेजिस्टेंस हम इंफिनिटी बना लेते, सो अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा इस वोल्ट मीटर का, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे पास करंट है, वो करंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. क्यों जरूरी है कि हम इस करंट को जीरो करें? उसका रीजन है कि अगर आप करंट जीरो नहीं करोगे तो एक्चुअल जो सर्किट था उसमें तो ये रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई करंट फ्लो कर रहा था. अगर आपने एक वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट किया है तो अब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है दैट इज I2, which is not equal to I. It will be less than I because current has been divided into two parts. अगर इसको सेम आई ही रखना है तो इसको, ये जो ऊपर करंट जा रहा था उसको क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा. उसको जीरो करने के लिए तुमको इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा, इनफाइनाइट रखना पड़ेगा. सो इसी वजह से तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाई इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इनफाइनाइट. सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट बिकॉज, और वेरी हाई, इनफाइनाइट का मतलब वेरी हाई, बिकॉज if it is, so the resistance of the voltmeter is high, kept high, so that it does not change the current which is actually flowing in the circuit. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा यहाँ पे तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो करंट एक्चुअली रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा था ना उसी के थ्रू जाता रहेगा, वो पैरेलली ऊपर से जाके करंट नहीं जाएगा. उस करंट को जीरो होने के लिए इसका रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना है ना. तुमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाई इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर, राइट, एंड व्हाई इज द वोल्टेज, व्हाई इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इनफाइनाइट और वेरी हाई. सो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई so that it does not change the actual circuit, does not change the current which is flowing in the actual circuit. And voltmeter is connected in parallel so that it can measure the potential difference across the 2 points. क्लियर है बच्चों? दक्ष आया समझ? यस सर. So this is how voltmeter is connected. You can see here, if we have to measure the potential difference across these 2 points x and y, what we'll do, we'll connect a voltmeter just in parallel to this resistance R. And this is how it looks basically. तो initially 0 वोल्ट पे होगा, मान लो ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला एंड नेगेटिव है, हमने इसको दो वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे, है ना. यहाँ पे एक रेजिस्टर था, इस रेजिस्टर के क्रॉस लाके हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और बाद में जाके एक सेल से इसमें कनेक्शन हमने चालू कर दिया, राइट. तो इसके अक्रॉस, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा, जैसे ही हम यहाँ पे अगर मान लो स्विच है, स्विच को ऑन किया तो जितना भी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, ये पॉइंटर इधर मूव करके ये तुम्हें वोल्टेज दिखा देगा. मान लो 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट शो करेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो Yes, ये sir. हमेशा इस टर्मिनल को तुम ऐसे कनेक्ट करते हो, यहाँ पे जो वोल्टमीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव है वो ऐसे कनेक्ट करते हो कि इस बैटरी का पॉजिटिव साइड जो है इस पॉजिटिव साइड के तरफ रहे और ये नेगेटिव साइड जो है इस वोल्टमीटर के नेगेटिव साइड के तरफ रहे. क्लियर बच्चों? Yes. चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरे स्लाइड पे.
अब ये तो हम लोग ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बेसिक अगर डेफिनेशन देखो, सो करंट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. Now, electric current is a flow of electric charges called electrons. So, in a conductor such as metal wire, the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second, right? So, rate of flow of electric charge is called current. अगर हम लोग इसको formula से देखें, I is equal to Q upon T. So, let's say if Q amount of charge is flowing through a cross section in T time, then we say that the current is equal to Q upon T. So होता क्या है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे कट करते तो उसका जो सेक्शन है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब ये मान लो चार्ज है Q, तो जितना चार्ज इसके थ्रू इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फ्लो करेगा, लेट्स से Q अमाउंट ऑफ चार्ज flows across this across this cross section, then and in T time, let's say the total amount of charge which is flowing through this cross section is Q, then we'll say that the current which is flowing inside this conductor through this cross section is equal to Q upon T. So conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. This we saw earlier also. मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करता है। और हम लोगों ने जब करंट का डेफिनेशन लिखा उस समय हमने लिखा द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ये पहले ही आ गया था, बाद में जाके पता चला कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। बट टिल देन द डेफिनेशंस वेयर ऑल सभी पूरे वर्ल्ड ओवर इट वाज एक्सेप्टेड। तो अब फिर से जाके सबको चेंज करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि ये हम बोल देते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So I is equal to Q upon T. So if Q amount of charge is flowing through a cross section in T time, the current is equal to charge Q upon T. So if a charge Q coulombs flow through a conductor in time T second, then the magnitude I of the electric current flowing through it is given by I is equal to Q by T. The SI unit of electric current is ampere. जो इसका SI यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर, राइट. तो इन्होंने बेसिकली काफी काम किया था इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो इन्हीं के नाम पे इस इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली ये दे दिया गया. So when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. So let's say this is a conductor, and through this cross section, let's say in 1 second, 1 coulomb of charge is flowing, then the current I will be Q upon T, that is 1 coulomb by 1 second, which is equal to 1 ampere. So एम्पियर का यूनिट बेसिकली क्या होता है? 1 coulomb by 1 second is called 1 ampere. So there are few smaller units also. So 1 milliampere is generally 10 to the power minus 3 ampere, and another smaller unit is microampere. So where 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere. Okay. So these are the two smaller units, milliampere and microampere. So milliampere is 10 to the power minus 3 ampere and microampere is 10 to the power minus 6 ampere. सर नैनो एम्पियर भी तो होता है. होता तो बहुत कुछ है, तो कोई भी चीज तुम बोल दो. किलो एम्पियर भी होता है, मेगा एम्पियर भी होता है, बट मतलब
बहुत सारी चीजें हैं, पिको एम्पियर भी होगा, फर्मी एम्पियर भी होगा, राइट, बट देन दोज आर नॉट वेरी वाइडली यूज्ड. जो काफी यूज होगा वो जनरली ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में ही होगा. Yes, sir. सो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. तो वहां पे हम लोग वोल्टेज को कैसे मेजर करते थे, वोल्ट मीटर से, और करंट को कैसे मेजर करेंगे, यूजिंग एन एमीटर. और एमीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, एमीटर को उस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सो लेट्स से वी हैव दिस रेजिस्टर, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमें उसका वैल्यू निकालना है. तो लेट्स से यहाँ पे एक बैटरी हम लोगों ने लगाया. तो जैसे वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करते थे, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे. लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस R, द वोल्टेज इज V, so current let's say is I. So now current flowing through this emitter will move the pointer and show that how much current is flowing through this. Okay. So current emitter is always connected in series. और अगर ये सर्किट को चेंज नहीं करे, भाई इसका कुछ अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो ये सर्किट का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना रेजिस्टेंस का. हमारे पास सर्किट में कह रहा है R रेजिस्टेंस है, अगर इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लो R डैश इसका रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को दोनों का रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है सीरीज में. अभी हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी बस जान लो कि रेजिस्टेंस में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. तो एमीटर का अगर खुद का कुछ रेजिस्टेंस रहा तो उस केस में सर्किट चेंज कर जाएगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं. पिछले वाले केस में भी हमने देखा कि भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हम लोगों ने इसीलिए रखा सो दैट द सर्किट डज नॉट चेंज, राइट. सिमिलरली हियर, you know, the value of the ammeter's resistance is negligibly zero, so that you know, the net resistance, जो overall resistance है, that does not change, and the current also does not change. So ammeter is always connected in series with the circuit in which the current is to be measured, and ammeter should have a very low resistance so that it may not change the value of current flowing in the circuit. Clear है बच्चों? Yes, sir. So voltmeter का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और एमीटर का रेजिस्टेंस negligibly zero. Voltmeter is connected in parallel and ये ammeter is connected in series. Clear? Yes. You can write it also. तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितना पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहा है, राइट, दैट चार्ज अपॉन टाइम विल गिव यू करंट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शन तो वो दिख रहा है अभी हम लोगों को. Now, simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor. So if we have two ends of a conductor, to maintain a potential difference across the two ends, what we need to do is we need to attach a cell across these conductors so that we can maintain a potential difference across these two ends of a conductor, and we can have a continuous flow of current. So simplest way to maintain a potential difference between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of current is to connect the conductor between the terminals of a cell or a battery. The conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to the negative terminal through outer circuit, right? So conventional direction क्या है? Positive terminal से negative terminal through the outer circuit. So let's say we have a cell here. So यहाँ पे outer circuit में positive to negative current का direction होता है. So let's say this is positive and this is negative. Outer circuit में it is from positive to negative. So this is the conventional direction. The actual flow of electron is, however, from negative terminal to the positive terminal of a cell. तो ये current का direction हो गया. और
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हो गया मूवमेंट। Now, this we have already discussed also earlier, how the current flows in a wire. So when the metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or a battery, then the electrons present in it move at random in all the direction between the atoms of the metal wire. हम लोगों ने देखा था ना कि random direction में free electrons move कर रहा था अगर हम लोग उसके across battery नहीं connect करते हैं. But जैसे ही हम लोगों ने battery connect किया था conductor के across, it started moving in a particular direction, and this is how current flows. So when a source of electricity like a cell or a battery is connected between the ends of a metal wire, then the electric forces acts on the electron present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire. This flow of electron constitutes the electric current in the wire. एक्सक्यूज मी सर, सर एक रिक्वेस्ट है, ये पीडीएफ भेज देंगे क्या ग्रुप पे? हाँ, वो तो हम क्लास के बाद, वो जैसे अभी पीछे भी भेजा था ना मैथ्स का जैसे। यस सर, यस सर। ठीक है, तो उससे आप लोग अपना नोट्स वगैरह जो बनाना है वो बना लीजिएगा। ठीक है, और अक्षत और नमन आप दोनों को स्टडी मटेरियल भी मैं कुरियर करवा दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे ना सब बंद हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो इसीलिए हम लोग ड्राइवर को भेज नहीं पा रहे हैं। तो 3-4 दिन में थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना तो आई विल सेंड मंडे वनडे को, ओके सर। कुरियर करवा दूंगा, तो आप लोग के पास बुक पहुंच जाएगा, तो फिर आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सर मतलब आप अपनी ही बुक से पढ़ाते हैं? मतलब आप आपकी अलग अलग बुक है? मतलब आप सीबीएसई की बुक के साथ एक और बुक है? हाँ, सीबीएसई की अलग बुक है। तो अभी जो हम पोर्शन कर रहे हैं वो तो सीबीएसई वाला ही पोर्शन कर रहे हैं। ओके सर। भी मैं फाउंडेशन के लिए मुझे जो भी एक्स्ट्रा बताना होता है मैं बताता चला जाता हूँ। ठीक है, ओके सर। फिजिक्स में तो ऐसे ही है, और मैथ्स में बेसिकली प्रैक्टिस के लिए एक अलग से बुक है फाउंडेशन का। ओके सर। तो अभी वो लोग जब हम लोग 2-3 चैप्टर कर लेंगे तब फिर वो फाउंडेशन पे भी जाएंगे हम लोग, और उसमें भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन निकालेंगे। ओके सर। दोनों मिक्स ही है, मतलब मेरा जो सीबीएसई वाला भी स्टफ है उसमें बहुत सारा फाउंडेशन का मटेरियल। इस साल हम लोगों ने अलग से फाउंडेशन वाला मटेरियल बनाया, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप लोग के काम ज्यादा है। ठीक है, एक बार मिल जाएगा तो आई विल गाइड यू कि किसको कैसे करना है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? बेसिकली हम लोग सारे जो डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस को अलग अलग जब हम लोग साथ में कनेक्ट करके एक पूरा एक साइकिल बनाते हैं, ऐसा फ्लो ऑफ करंट के लिए एक पूरा अगर हम उसको पाथ देते हैं जिससे करंट स्टार्ट हुआ और वापस उस बैटरी तक आ गया, सो दैट पर्टिकुलर सेटअप इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कंडक्शन पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, रेजिस्टेंस, switch, two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, एक कंटिन्यूअस कंडक्शन पाथ हम फॉलो मतलब प्रोवाइड करते हैं, और उसमें क्या क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाया, ये वायर लगाया कनेक्टिंग वायर्स, उसके बाद मान लो एक एमीटर भी लगा लिया, ये भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर भी लगा लिया इसके अक्रॉस, और एक बैटरी भी लगा लिया, सो लेट्स से एक सेल या बैटरी भी लगा लिया, और एक स्विच भी लगा दिया। तो ये सारे जो हैं ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ये सब उसके सिंबल्स हैं। तो इसको, ये सिंबल है स्विच का, ये सिंबल है बैटरी का, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये जो वी ऐसे गोल के अंदर वी है ये वोल्ट मीटर का, और ये जो राउंड के अंदर ए है ये एमीटर का है। सो दिस इज बेसिकली द बेसिक सेटअप। अब यहाँ पे तुम प्रोवाइड क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस कंडक्शन पाथ। तो इलेक्ट्रॉन पूरे पाथ में जब ये ऑन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरे पाथ में फ्लो कर रहा हो, राइट। तो ये जो कंटिन्यूअस, ये करंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, राइट। तो ये जो कंटिन्यूअस कंडक्शन पाथ हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज एन सर्किट।
Now battery is a combination of two or more cells connected in a series. तो basically क्या है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है कि कई सारे सेल्स को साथ में जोड़ते हैं तो हमें एक बैटरी मिलता है. तो ये बैटरी हो गया, और सिंगल एक ऐसा दिखेगा तुमको तो ये सेल हो गया. तो कई सारे सेल्स को जब साथ में जोड़ेंगे तो बैटरी मिलेगा, और सिंगल एक जब हम लोग यूज करते हैं उसको सेल कहते हैं. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, और ये पॉजिटिव. So battery is nothing but a combination of many cells joined together. So resistance which can be changed as desired is called variable resistance. So basically हमारे पास let's say एक resistance है, और इसको हम लोग चेंज जब करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो शो करते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के एग्जांपल्स होते हैं रियोस्टैट और रेजिस्टेंस बॉक्स. ये दो तरीके का एग्जांपल. तो रियोस्टैट क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, वो हम लोग तुमको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि कैसे रियोस्टैट में हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, और कैसे ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें हम लोग कैसे रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं. दिस विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. तो मैं यहीं पे रुकूंगा आज की क्लास में, और जो पीछे के जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे स्लाइड्स को मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, जिससे कि तुम अपना एक बार पढ़ भी लेना, और नोट्स वगैरह जो बनाना है वो तुम नोट्स बना लेना. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन, है ना. Thank you, sir. टेक केयर.